Okay, this is marginal costing that we have started yesterday, and I think we have done one practical question. One simple question was done. Let us begin with few more. See this illustration number one. A company produces and sells 1000 units of a product per month at the rate of rupees 20 per unit. Okay. If the variable cost is 12 per unit and fixed cost is rupees 3000 per month. Now, what you have to calculate? Calculate break-even point in units. So he is asking you break-even point in units and not in rupees. So it's okay if you don't calculate in terms of rupees. If the selling price is reduced by 20 percentage, calculate new break-even point in units. अगर सेलिंग प्राइस 20% से कम हो गई तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा यूनिट्स में and calculate the number of units to be sold at reduced selling price. मतलब 20% जब reduce हो रहा है तो उस टाइम पे कितना selling price होना चाहिए to earn a profit of 4000. To earn a profit of 4000 means desired profit. तो जब भी वो पूछेगा calculate number of units to be sold, तो मतलब इसका मतलब required sales पूछ रहा है वो. जो हमने लास्ट फॉर्मूला सीखी थी वो याद है सबको रिक्वायर्ड सेल्स की. You all remember the formulas? If you want, we can have a quick. मैम रुपीस में यूनिट में यूनिट्स में उसने हाँ मतलब हमने रुपीस में सीखा है ना अगर तो यूनिट्स में भी निकालना है आपको. ये रिक्वायर्ड सेल्स मैंने आपको कौन सी फॉर्मूला बताई थी? हाँ दोनों बताई थी ना. तो अब आपको दोनों में से जस्ट अ मिनट ये मैंने एक ही पेज पे रखा था ना इसको नीचे कैसे आ गया अलाइनमेंट बिगड़ गई क्या जस्ट अ मिनट. ये देखो ये सारी फॉर्मूलाज हमने की थी रिक्वायर्ड सेल्स की भी की थी. अब रिक्वायर्ड सेल्स में दोनों फॉर्मूलाज की थी रुपीस एंड यूनिट्स. तो अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड मींस रिक्वायर्ड सेल्स इन नंबर ऑफ यूनिट्स. If the desired to earn the profit of rupees 4000 means the desired profit is 4000. अगर 4000 का प्रॉफिट चाहिए तो रिक्वायर्ड सेल्स कितनी हो जाएगी? तो यूनिट्स की फॉर्मूला लगानी है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज. फॉर्मेट क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट शीट का? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आपको मिलता है कंट्रीब्यूशन. आप माइनस करते हो फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको मिलता है प्रॉफिट. ओके. अब कंट्रीब्यूशन में से आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए you have three different formulas. Either you have to apply sales minus variable cost, you will get contribution, or fixed cost plus profit also will fetch you contribution, and sales into PV ratio will also give you contribution. Similarly, we have another formula for PV ratio. Just now we discussed contribution is equals to sales into PV ratio. So if you want PV ratio, you have to divide contribution by sales into 100. Contribution divided by sales into 100. Or you can have instead of contribution you can have sales minus variable cost upon sales into 100. Instead of contribution you can also have fixed cost plus profit upon sales into 100. So either of them can be used if one product, one company, one year, one situation, one circumstance is given. If there is more than one circumstances, okay, if there is more than one company, if there is more than one situation, then the next formula will be applied which is highlighted on the screen. Change in the profit upon change in sales into 100. Is it clear? yes ma'am. Yeah. Now next formula was BEP, break even point. What is the formula of break even point? If you want to calculate in rupees, it is fixed cost upon PV ratio.
fixed cost upon PV ratio. And if you want to calculate in terms of units, just change the denominator. Fixed cost upon contribution per unit. Margin of safety. If you want to calculate in terms of rupees, then actual sales in rupees minus BP sales in rupees. Just change rupees into units if you want to calculate the formula in terms of units. Actual sales in units minus BP sales in units. You have another formula if you want to calculate in terms of rupees, and that is profit upon PV ratio. It is another formula to calculate in terms of rupees. Please mind that. Please keep it in mind. It is profit. Profit is in terms of rupees. So rupees will be divided by PV ratio. Answer will be in rupees. Okay. Last, required sales. If you want to calculate in terms of amount, then fixed cost plus desired profit upon PV ratio. And if you want to calculate in terms of units, you just have to change the denominator. Numerator will be typically same. Fixed cost plus desired profit upon contribution per unit. Is it clear, everybody? Yes, ma'am. So now we'll solve sum number 1. Okay. What we have to do is first we have to make a statement, marginal cost statement, because we are not given everything ready made. We have to calculate contribution, we have to calculate profit, so it is not given, therefore we will have to calculate. So let us quickly make statement of marginal cost sheet. Do it with me. Three columns will be made. Particulars, this will be amount, and that will be per unit. Is it clear? Yes, ma'am. Yeah. Okay. So how many units are produced? 1000 units are produced. So here in particulars, we will write it in bracket, 1000 units are produced. 1000, sorry, units produced. Okay. Now, always we start with sales. What is per unit of sales? 20 rupees. See, company produces and sells 1000 units of a product per month at the rate of rupees 20. Rate means per unit. So rate is already given 20.00. So how will we calculate amount? Into 1000. 20 into 1000 20. means 20,000. 20,000. Very good. 20,000. Very good. Next is less variable cost. So what is per unit variable cost ka? What is variable cost per unit? 12. 12. 12 Already per given in unit. the question. 12. Yes, already Yes, given ma'am. in the question, 12.00. So 12 into 1000 will become bracket 12,000. Why? 12,000. 20,000. Yes. Why No, bracket? Why 12. did I put bracket? Less. It will be Yes. less from the sales. Yes, because we are deducting variable cost from sales. Whatever has to be deducted has to be shown in the bracket. So 20 minus 12 will be how much? 8,000. And how 8,000. will you, yes, how will you calculate per unit of 8,000? What is the formula of calculation of per unit? 8,000. Divided 8,000. by 8,000 8,000 divided divided by by 1000. 1,000. Therefore, it will be 8.00. Very good. 8,000 divided by 1,000 means 8.00. So this is contribution per unit. We will be in need of this per unit, because we need to calculate in terms of units also. Okay. Now less fixed cost. How much is fixed cost? Can you tell me in the question? Fixed cost are rupees 3,000. 3,000. 3,000 3,000. per unit. Yes, no, it's not per unit. 3,000 per month. And we are making Ma'am, according there to is a month. per month.
बच्चा per sales is also according to per month, no? See, 1000 units of a product per month. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Therefore, we are making according to monthly only. According to Okay, ma'am. months. Yeah. Because 1000 units is given as per month. So Monthly, ma'am. fixed cost is also given monthly. Therefore, full sum is according to monthly. Okay. Yes, yes, So ma'am. we will not have to convert it into 12, into 6 months, into 9 months. We don't have to do that. Okay. He is not asking to calculate according to per annum. No. Okay. So tell me the per unit of fixed cost. 3.00. 3.00. Very good. It is 3.00. Very good. So what will be my profit? It can be either profit or loss. So now you tell me, is this profit or loss? 5,000 5,000. profit. Very good. 5,000 it will be profit. Why? Because 3,000 is deducted from 8,000. So answer will be 5,000. 8,000 minus 3,000 will be 5,000 and 5,000 divided by 1,000 will be per unit 5.00. So the statement is made. If you can check here on the screen, the solution is there. 5,000 profit is same as ours. जैसे हमारा आया वैसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है? It is same as ours. Now, what we need to calculate? Break even. 3 points are there. First, break even point in units. So come down to the table. Write here number 1. BEP bracket units. Means it has to be calculated in terms of Units. Now you have to give me the formula. Just now we have revised all the formulas a few minutes ago. Fixed cost divided by contribution. Contribution per unit. Per Very unit. good. Not only contribution, it should be contribution per unit. That's what I was telling you, that contribution per unit will be in need because we have to calculate in terms of units. So fixed cost divided by contribution bracket per unit bracket close. Now tell me, what is fixed cost? How much is fixed cost? 3,000. 3,000. Very good. It is already given in the table, the table that we have made now. And what is contribution per unit? 8. 0.00. So 3,000 divided by 8. Repeat again. 375. 375. 375. What? 375 what? Rupees, units? Units. Units. Very good. So 375 units are sold. I mean, when 375 units are sold, there is no profit, no loss. This is break-even point. Okay? Is it now clear? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now, next point is, if the selling price is reduced by 20%, calculate new break-even point in units. How easy it is. I mean, very, very simple point. If this question comes in your paper, then आपकी तो बस बल्ले बल्ले है ना, कितना इजी है देखो. अब क्या बोल रहा है वो? If the selling price per unit, is reduced by 20%, comma, new break even point bracket units bracket close will be colon करके नीचे. If the selling price per unit is reduced by 20%, new break even point in units will be. अब कैसे करेंगे ये देखो. सबसे पहले आपको लिखना है selling price bracket per unit. लेकिन कौन सा सेलिंग प्राइस? ओल्ड वाला आपका सेलिंग प्राइस कितना था पर यूनिट? पर यूनिट कितना था आपका? 20. आपको चाहिए तो आप इधर ऐसे लिख सकते हो. ओल्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 20. ओल्ड सेलिंग प्राइस इज 20. वो बोल रहा है रिड्यूस करो 20% से. रिड्यूस का मतलब ऐड होता है कि लेस होता है?
लेस लेस। तो आपको क्या करना है, इधर लेस करना है, ठीक है। लेस 20%। 20 का 20% कितना होता है? 4 16 आएगा। नहीं नहीं, 16 आएगा 20 का हाँ। 20% कितना होता है? 4 होता है। 4 हाँ, तो मतलब मुझे न्यू Four सेलिंग per- प्राइस पर यूनिट मिलेगा ना। न्यू सेलिंग प्राइस per unit bracket close. So what will be my new selling price? 16 16. Very very important। हाँ, ये बहुत important है। इसके बेसिस पे ही आप अभी न्यू वाला ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। अभी देखो, अब मुझे क्या निकालना है, न्यू बीईपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। चलो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं बीईपी की, ठीक है। फिर से फॉर्मूला लगानी पड़ेगी, बोलो फॉर्मूला। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, contribution per unit वेरी गुड, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट will never change until they say 3000 so। It will be 3000 only, divided by contribution per unit. Now you have to again make a working note. See, I'm making a working note here, or you can make here only. See, selling price per unit is equals to 16. Okay, less variable cost. How much was the variable cost? 12. Variable cost was 12. No, look at the question. Variable cost is 12 per unit. yes It is already given. We just have to change selling price per unit. Earlier it was 20, now it is 16. So 16 minus variable cost 12. So your contribution per unit will be, come on, tell me. 4 4. 4. Very good. So your contribution per unit will be 4. 4. Now we can apply new formula. New BP units, fixed cost upon contribution per unit. So fixed cost is 3000. Contribution per unit is now 4. पहले कितना था contribution per unit? 8. 8 और अब कितना हो गया contribution per unit? 4. 4 तो आंसर तो डेफिनेटली चेंज होगा ना, ठीक है। 750. तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 4 से 3000 को, तो कितना हो जाएगा बोलो? 750 units. वेरी गुड, 750 यूनिट्स, ये आपका आंसर है। मतलब अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम होगा तो आपका बीईपी का सेल्स बढ़ेगा, यूनिट्स बढ़ेंगे। और अगर कंट्रीब्यूशन का पर यूनिट ज्यादा होगा तो बीईपी के सेल्स कम होंगे, यूनिट्स में कम आएगा आंसर। देखो, जब कंट्रीब्यूशन 8 था पर यूनिट तो आंसर आया हमारा 375 यूनिट्स बीईपी का। और जब कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो गया, 4 रुपीज हो गया, तो बीईपी के यूनिट्स बढ़ गए 750। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या पूछा उसने? कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड एट द रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस। मतलब हमको सेलिंग प्राइस कौन सी लेनी है? 20 नहीं लेनी है, 16 वाली लेनी है, जो अभी अभी कैलकुलेट की थी हमने, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो? कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड एट रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹4000। दैट मीन्स ये जो थर्ड फॉर्मूला वो बोल रहा है ना, वो रिक्वायर्ड सेल्स की बोल रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, उसने डायरेक्ट नहीं पूछा है, पर ये कौन सी पूछ रहा है? यूनिट्स वाली फॉर्मूला पूछ रहे हैं। तो यूनिट्स वाली फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे कौन सी है रिक्वायर्ड सेल्स की? fixed cost plus desired profit divided by डिजायर्ड contribution प्रॉफिट को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ डीपी। ओके, आपके व्हाट्सएप वाला डीपी नहीं है, डीपी हियर इज डिजायर्ड प्रॉफिट। सो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। per unit. Very good.
per unit. Okay. Now tell me, what is fixed cost? Fixed cost is always fixed 3000. until they say. ठीक है, तो 3000 आपका सेम रहेगा, 3000 फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डीपी कितना है आपका? डीपी डिजायर्ड प्रॉफिट दिया हुआ है थर्ड पॉइंट में 4000. 4000, 3000 प्लस 4000। मैम हाँ जी बोलो। मैम एक बार क्वेश्चन समझाओ ना। देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन मतलब पूरा क्वेश्चन की थर्ड पॉइंट? सिर्फ थर्ड पॉइंट मैम। ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। टू बी सोल्ड मतलब कितने यूनिट्स हमको बेचने चाहिए, बेचने चाहिए, रिक्वायर्ड सेल्स। अगर ये जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमको बेचने चाहिए, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड। अगर मैं इसको Okay, इंग्लिश में okay, कन्वर्ट करूँ तो आप पॉइंट पकड़ो ना, आप जो Okay, पढ़ रहे हो आप उसको आप देखो उसने क्या पूछा। देखो हमारे पास है ना कितनी फॉर्मूलाज हैं, आप है ना यहाँ पे देख लो। हमारे पास टोटल फॉर्मूलाज कितनी है? 5। पहला है कंट्रीब्यूशन, जब वो थर्ड PV पॉइंट ratio. में, हाँ पीवी रेशियो, ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रिक्वायर्ड सेल्स, ये पांचों में से कुछ भी एक ही पूछेगा वो। अब जब मैंने थर्ड पॉइंट पढ़ी, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड एट द रिड्यूस सेलिंग प्राइस टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 4। अभी ये पढ़ के तो मुझे लग रहा है कंट्रीब्यूशन तो नहीं पूछा है, पीवी रेशियो भी नहीं पूछा है, और ब्रेक इवन पॉइंट भी नहीं पूछ रहा है, और क्या बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी नहीं पूछा Margin है। of safety. तो रिक्वायर्ड टू देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड इन द मार्केट so as to earn the profit of ₹4000। मतलब आपको 4000 का प्रॉफिट कमाना है तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचना पड़ेगा? तो मतलब रिक्वायर्ड सेल्स पूछा है। अब समझ में आया? Yes मैम, समझा। ठीक है, अब आ जाओ मेन आपका सॉल्यूशन पे। अब रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट्स में पूछा है तो हम यूनिट्स में कैलकुलेट करेंगे, रुपीस में पूछा है तो रुपीस में करेंगे, कुछ नहीं बोला है तो दोनों में करेंगे अगर पॉसिबिलिटी है तो। ठीक है, अब तो उसने यूनिट्स में पूछा है तो फॉर्मूला लगाएंगे फिक्स कॉस्ट प्लस डीपी अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज फिक्स्ड 3000 जब तक वो बोलते नहीं है, प्लस 4000। ये 4000 कहाँ से आया? थर्ड पॉइंट में उन्होंने बोला है वी वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 4000 रुपीज, तो कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए, तो वही तो निकाल रहे हैं हम। 4000 अगर मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, 3000 अगर फिक्स्ड कॉस्ट है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट याद रखो। इसलिए अभी आप बोलोगे मैम हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो दो है, एक पुराना वाला 8 रुपए का, और एक जब हमने रिड्यूस कर दी थी सेलिंग प्राइस। जब हमने सेलिंग प्राइस को रिड्यूस किया था तब मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना था? आप बताने वाले हो। 4, 4। और जब रिड्यूस नहीं किया था तब कंट्रीब्यूशन कितना था? 8. तो अब मैं कौन सा कंट्रीब्यूशन लूं? उसने बताया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ बताया है उसने। 4 हाँ, एट द रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस। कौन सा कंट्रीब्यूशन लेना है? एट द रिड्यूस्ड Reduced सेलिंग वाला। प्राइस। मतलब जब हमने रिड्यूस कर लिया था सेलिंग प्राइस को तो उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन भी कम हो गया था, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया था? 4 पर यूनिट। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3000 प्लस 4000 कितना होता है? 7,000. 7000 7000 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका फाइनल आंसर देखो कितना है? 1750 units 1750 750 यूनिट्स। units समझा? हो गया आपका खत्म, पूरा सम फिनिश। देखो कितना इजी है, कुछ भी नहीं है। मतलब आपको सिर्फ है ना लॉजिक्स अपने क्लियर रखने। मतलब उसने क्या पूछा है, कौन सी फॉर्मूला कब लगानी है और कैसे लगानी है, अप्लाई कैसे करना है, बस आपको इतना लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी जिन्होंने नहीं लिखा है वो पहले लिख लो, कि सबने लिख लिया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। लिख लिया मैम। सबने लिखा है? सब रिप्लाई करो। एवरीबडी हैज रिटन? Yes ma'am. yes ma'am पक्का सब? मैं अगर आप कहेंगे चैट बॉक्स में लिखो या मुझे बोलो कि लिखना है तो मैं वेट करती हूँ 2 मिनट। डन?
ठीक है, ओके, एवरीबडी इज डन. हाँ, आई एम अज्यूमिंग एवरीबडी इज डन. सो आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो यहाँ पे आपके आंसर्स दिए हुए हैं. हाँ, पहला था 375 यूनिट्स. फिर जब हमने रिवाइज्ड न्यू बीईपी निकाला तो 750 यूनिट्स आया था. और उसके बाद हमारा रिक्वायर्ड सेल्स इसने रुपीस में निकाल दिया है. रुपीस में क्यों निकाला? उसने तो यूनिट्स पूछे हैं. ये गलत निकाला है इसने. 3000 प्लस 4000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो क्यों लगाया है इसने? फिर से पढ़ो क्वेश्चन. कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड. ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स पूछा है ना. कोई बात नहीं, हमने करेक्ट किया है, डोंट वरी. इसने रिक्वायर्ड सेल्स को रुपीस में निकाला है, हमने रिक्वायर्ड सेल्स को यूनिट्स में निकाला है जो उसने पूछा था. इज दैट ओके? Yes, ma'am. चलो एक काम कर लेते हैं, कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं. एक और फॉर्मूला, रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस भी कैलकुलेट कर लेते हैं. वैसे तो नहीं पूछा उसने, पर हम कर लेते हैं. ओके, रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस. बोलो रुपीस की फॉर्मूला क्या होती है? कम ऑन, क्विकली. Fixed cost per desired profit divided by PV ratio. Very good. Fixed cost plus desired profit upon PV ratio. Okay. Now, tell me what is fixed cost? 3000. Fixed cost is 3000. What is desired profit? 4000. Whole divided by PV ratio. अब PV ratio तो मेरे पास नहीं है, तो 2-4 लाइंस छोड़ के म्यूट आंसर्स देकर म्यूट कर दो. ओके, नाउ सी, 2-4 लाइंस छोड़ देंगे हम क्योंकि हमारे पास पीवी रेशियो नहीं है. हम यहाँ पे एक स्टार मार्क देकर पीवी रेशियो निकालेंगे. पीवी रेशियो की फॉर्मूला क्या होती है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. into 100. वेरी गुड. अब मुझे ऊपर जाओ, टेबल को देखकर बताओ कंट्रीब्यूशन कितना है और सेल्स कितना है. कंट्रीब्यूशन है 8000 और सेल्स है 20000. 40. हाँ, एक मिनट रुक जाओ. सो कंट्रीब्यूशन है 8000 डिवाइडेड बाय सेल्स है आपका 20000 इंटू 100. तो आपका 8000 डिवाइड बाय 20000 इंटू 100 कितना आना चाहिए? सॉरी 20 30 कितना? 40. 40. 40. 40. ओके ओके, सो इट इज 40. ओके, 40%. तो अभी आप यहाँ ऊपर वाली फॉर्मूला में आ जाओ, डिनोमिनेटर में डालो 40%. मतलब फॉर्मूला कैसे बन गई? 3000 प्लस 4000 डिवाइड बाय 40%. तो आप यहाँ पे लिखोगे 7000 न्यूमरेटर का आंसर डिवाइडेड बाय 40%. एंड प्लीज स्टूडेंट्स नोट, इट इज 40%. तो जब तक आप परसेंटेज की फॉर्मूला नहीं, परसेंटेज का साइन नहीं प्रेस करोगे तब तक आपका आंसर प्रॉपर नहीं आएगा. 17,500 17,500 क्या? रुपीस. 17,500. आपने कैसे किया होगा कैलसी पे? आई विल रिपीट फॉर यू ऑल. 7000 डिवाइडेड बाय 40%. परसेंटेज का साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सिर्फ 7000 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल्स टू करेंगे तो रॉन्ग आएगा आंसर. आप चेक कर लो चाहिए तो. और यहाँ पे देखो इनका, एक मिनट, इनका ओके सॉरी, हम रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस पे निकालना है ना हमको. रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस, तो रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस में ये थोड़ी लगेगा. रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस का 40 नहीं आएगा. कितना आएगा? ये देखो मैं बताती हूँ. हमारा रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस पे कंट्रीब्यूशन कितना था? 4. रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस कितनी थी? 16.
तो 4/16 करना पड़ेगा ना अपने को। ये देखो 4/16 इंटू 100। हम भूल गए, हम तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे कर रहे थे, ओरिजिनल वाला नहीं, रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस का पीवी रेशियो निकालना है। तो बोलो 25 यस 25% हमारा पीवी रेशियो आएगा। तो हम ऊपर लेकर जाएंगे 25% डिनोमिनेटर में। तो 3000 प्लस 4000 7000, 7000 डिवाइडेड बाय 25%। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 28,000. वेरी गुड 28,000। अभी आप चेक करो, देखो इनका भी आंसर 28,000 आए। मेरे कर्सर को देखो। Yes. ठीक है, रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस पे निकालना ना। तो रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस थी हमारी 16 और कंट्रीब्यूशन था 4। तो 4/16 इंटू 100 इज 25% पीवी रेशियो। तो वही हमने फॉर्मूला में लगा दिया रिक्वायर्ड सेल्स की। तो आंसर आया हमारा 28,000 रुपीज। ठीक है, तो हमारा ये सम पूरा हुआ। बोला नहीं था उसने रुपीस में, पर आपको सिखाने के लिए मैंने करवा दिया। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? We gonna join after 5 Yes, minutes ma'am. break. Yeah, after 5